morning for US, and this is the effect of COVID that मैं कभी अमेरिका गया नहीं, लेकिन अमेरिका में बात कर रहा हूँ आप सबसे. Are you comfortable with mixed language? Any problem? अच्छा चलेगा. So I was told कि I have to speak in mixed language. So thanks everyone, especially Ambedkar Association for North America, Anna, for inviting me, and this is the first time I am speaking with my friends in USA, and the topic is very relevant and contemporary, living Ambedkar and its significance in post-COVID era. Or I think this is a quite relevant, and this is the COVID effect that I am delivering online lecture to United States of America. Dr. Ambedkar has been multilingual, multi-talented, multi-dimensional, cosmopolitan and encyclopedic statesman and leader. So the point is कि जब तक injustice है तब तक अम्बेडकर relevant हैं. जब तक fraternity, there is some electricity problem. Just hold on. Can you listen me? It is all right. There is some electricity problem. Just hold on. This is India. Now it is fine. Sorry for disturbance. So the point is how much time I have. Hello. ओके, ठीक है. सो जब तक इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम अचीव नहीं करते हैं तब तक अम्बेडकर रिलेवेंट रहेंगे ऑलवेज. बहरहाल, एज ओविड ने जैसा इंट्रोड्यूस किया है कि मेरी एक यूट्यूब चैनल है अम्बेडकर नामा, एंड दिस इज ऑल्सो अ कोविड इफेक्ट. व्हेन देयर वाज अ लॉकडाउन इन इंडिया, देन वी वर होम for self imposed isolation. So what I did, पूरा अम्बेडकर की राइटिंग पढ़ना है और उसको वीडियो बनाना है every time. So every day, average 2 videos every day. So but today I'll speak on three issues, 3 things, because Ambedkar is encyclopedia, or it is not justice to him कि आधे घंटे में हम पूरा समराइज कर लें. So I'll summarize 3 points. One, lecture in Burma Buddhist International Buddhist Conference, 4th December 1954, and the title of his lecture, which is submitted in the form of memorandum, was Buddhist Movement in India, a Blueprint. The second thing, the Buddhist Society of India, he established a Buddhist Society of India in 1955, and the third is letter to Wali Singha. He was General Secretary, Mahabodhi Society of India, and he wrote on 30th October 1956. So I will discuss 3 things. The first thing is, in Burma there was international conference, 4 December 1954. So he gave a long lecture and submitted in the form of memorandum to the Shashan Council, and the highlights was Buddha need no visa and passport. So he said कि अगर बर्मा से बाहर किसी को बुद्धिज्म का अगर प्रचार करना है, प्रोपगेट करना है, तो भारत से बेहतर कोई और देश हो नहीं सकता है. And this is a long lecture. If you want to read, then see volume 17, part 3, page number 506 to 512. There is entire proceeding of his lecture. So he said, उन्होंने कहा कि भारत
बुद्ध की बर्थ प्लेस है और ये 2000 साल तक यहाँ चला, फिर डिक्लाइन कर गया और डिक्लाइन करने के कई रीजंस उन्होंने दिए, लेकिन अभी भी लोगों के मेमोरी में बुद्धिज्म जिंदा है। और ये एक ऐसा पौधा है, ऐसा प्लांट है जो सूख गया है, बट इसके रूट्स अभी भी जिंदा हैं। और ये भारत में चूंकि इसका रूट्स है, इसलिए इसको कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, इसके रूट्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ। और हिंदुओं में खास तौर से ऐसा क्लास है, स्पेशली दी अनटचेबल्स एंड दी बैकवर्ड क्लासेस, कि वे हिंदू धर्म के खिलाफ है। और हिंदू धर्म के खिलाफ इसलिए है, हिंदुइज्म के खिलाफ इसलिए है बिकॉज हिंदुइज्म जो है ग्रेडेड इनइक्वालिटी में बिलीव करता है, इसलिए वो इसके खिलाफ है। और वो एक ऐसा एक ऑडियंस है, एक ऐसा क्लास है जिसमें हम इजिली बुद्धिज्म को फैला सकते हैं, बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सकते हैं। सो उनमें एक अनरेस्ट है अनटचेबल्स में एंड बैकवर्ड क्लासेस में। सो ये दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम कि जहां हम उनको उनके पूरे माइंडसेट को कैप्चर कर सकते हैं। सो ही गेव एग्जांपल ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि भारत में क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड क्यों फेल हुआ, बिकॉज द मिशनरी दे स्टार्टेड with the Brahmins. So the missionaries they had the impression कि अगर ब्राह्मण को once we persuade Brahmin, then automatically the entire population will adopt Christianity. But their program was failed because Brahmin in Hinduism, ब्राह्मण के पास सब कुछ है. He is the harbinger of the society, and every top position is captured by the Brahmin. So, there is entire story, but in the later part of his lecture, Ambedkar said he gave entire blueprint कि भारत में बुद्धिज्म कैसे spread करेगा. So what is to be done basically? So the first point was कि एक बुकलेट तैयार करना है. बुकलेट तैयार करना है, बेसिक बात of Buddhism, because everybody cannot read 73 वॉल्यूम्स ऑफ बुद्धिज्म. और जैसे बाइबल एक छोटी सी किताब है और उससे पूरा दुनिया में स्प्रेड हो गया, उसी तरह एक छोटा सा बुकलेट तैयार करना है, एक हाइलाइट्स तैयार करना है, जिसमें पूरा जो समराइज करे बुद्धिज्म को, और आम लोग, द कॉमनर्स, द कॉमन पीपल, उनके बीच मैसिव स्केल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें. एंड द another important thing was that he said कि when we prepare a booklet, then there is much emphasis on the social and moral aspect of the life, moral aspect of the people. Next कहते हैं कि जैसे बुद्धिज्म में बैप्टिज्म है, उसी तरह से एक यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए कि when you there is conversion from Hinduism or any other religion to Buddhism, then baptism तरह का कुछ एक सिस्टम होना चाहिए, because there is no code of procedure. Then उसके बाद भी वो बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद भी बुद्धिज्म छोड़कर चले जाते हैं. Simply chanting पंचशील is not sufficient. इससे सिर्फ बात नहीं बनेगी. So किसी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को यह फील कराने के लिए कि हिंदू नहीं रहा, ही इज नो लॉन्गर ए हिंदू, सो एक नया मनुष्य, एक न्यू मानव, न्यू ह्यूमन बीइंग बन रहा है, इसके लिए कोई सिस्टम डेवलप होना चाहिए. इसके अलावा नेक्स्ट जो कहते हैं कि हमारे पास उपासक होना ही चाहिए बहुत सारा, जो लोगों के बीच जाएं और उनके बीच बुद्धिज्म को स्प्रेड करें. और ये प्रोफेशनल प्रचारक होने चाहिए, सैलरीड होने चाहिए, इनको सैलरी मिलनी चाहिए शुरुआत में, और शादीशुदा होने चाहिए, मैरिड होने चाहिए, ऐसे प्रचारक हमें चाहिए. इन द बिगिनिंग तो पार्ट टाइम जो प्रचारक है उनसे काम चल सकता है, लेकिन एट द लास्ट अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट बुद्धिज्म, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, देन यू हैव टू हैव फुल टाइम प्रचारक, फुल टाइम पेड मैरिड प्रचारक. देन नेक्स्ट कहते हैं कि एक ऐसा सेमिनरी होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां पे आप
एक कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, ऑल रिलीजन्स, नॉट ओनली बुद्धिज्म बट ऑल रिलीजन्स, उसका कॉम्परेटिव स्टडी होना चाहिए। एवरी संडे जो आप कर रहे हैं अभी, एवरी संडे बुद्ध विहार में कम्युनिटी वर्शिप सिस्टम होना चाहिए, और उसके बाद एक डिस्कशन का सेशन हो, जो हम लोग कर रहे हैं अभी बात कर रहे हैं, एक डिस्कशन होना चाहिए। सो ये है एक इनिशियल स्टेज पे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रिलिमिनरी स्टेप्स के बाद जो कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, वो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि 4 इम्पोर्टेंट सिटीज, मद्रास, बम्बई, नागपुर एंड दिल्ली कि बिग टेम्पल्स एंड विहार होने चाहिए। देयर शुड बी ह्यूज बिग ग्रैंड टेम्पल एंड विहार। देन इन दिस सिटीज मद्रास, नागपुर, कलकत्ता एंड दिल्ली, इसमें हाई स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टैब्लिश होना चाहिए। देयर मस्ट बी हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन मद्रास, नागपुर, कलकत्ता एंड दिल्ली। नेक्स्ट, देयर शुड बी ऐसे कॉम्पिटिशन ऑन बुद्धिज्म, और एटलीस्ट जो 3 जो विनर हैं, टॉप विनर हैं, जो 3 बेस्ट उसमें करते हैं, उसको प्राइज देना चाहिए। प्राइज देने से उसकी दिलचस्पी, उसका इंटरेस्ट जो है वो बुद्धिज्म में डेवलप होगा। कि ओपन कंपटीशन, और ओपन कंपटीशन इज ओपन फॉर एवरीवन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कि उसमें नहीं है कि भाई ये आएगा नहीं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी आना चाहे, मेल फीमेल, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। और डॉक्टर अंबेडकर सेड दैट दिस इज द बेस्ट वे टू स्प्रेड बुद्धिज्म अमंग द मासेस। और इंटरेस्टिंग है कि जो ग्रैंडनेस कहते हैं कि जो टेम्पल होना चाहिए, बुद्धिस्ट टेम्पल, वो इतने ज्यादा बड़े होने चाहिए कि लोग अगर दूर से ही देखें तो उनको लगे कि भाई वहां कुछ ना कुछ खास बातें हो रही है। और जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो बुद्धिस्ट टेम्पल के आसपास होने चाहिए, बिकॉज कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का जो एक्सपेंशन हुआ वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू हुआ, स्कूल कॉलेजेस के थ्रू हुआ। इसलिए यूथ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए टेम्पल के पास, बुद्धिस्ट विहार के पास वो होना चाहिए, कॉलेजेस एंड स्कूल होने चाहिए। तो आगे जो लेक्चर है उसमें कहते हैं कि ये सब तो क्या प्रोग्राम है, ये हमें क्या करना है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस जरूरी हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं? तो कहते हैं कि बुद्धिज्म डिसअपियर इसलिए नहीं इंडिया से हो गया कि इसके जो थेरीज, जो प्रिंसिपल्स थे वो कोई खराब थे, वो कोई बैड प्रिंसिपल थे। कि भारत से जो डिसअपियर हुआ बुद्धिज्म, उसके रीजंस डिफरेंट हैं। और कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत कुटिलता से और थ्रू पावर, थ्रू सप्रेशन बुद्धिज्म को यहाँ पे हराया। सो एवरीबडी नोज दैट सम्राट अशोक के जो कमांडर थे, पुष्यमित्र शुंग, ही वाज अ ब्राह्मण। ही assassinated Ashok in front when he was taking salute of the army in front of everyone. So he assassinated Ashok, और इसके बाद वो पूरा ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म का एस्टैब्लिशमेंट होता है और बुद्धिज्म को एक तरह से सप्रेस करते हैं। कहते हैं कि इसके बाद जो इस्लामिक इन्विजन हुआ, इस्लामिक इन्विजन की वजह से भी बुद्धिज्म को दिक्कत हुई। लेकिन अब इस्लाम से कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो ब्राह्मण धर्म से है, ब्राह्मण से है कि ये वंस पर्सन इज ए ब्राह्मण, एवरी टाइम इज ए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण से खतरा है, इसलिए उसके डेंजर से बचना चाहिए, उसके कॉन्स्पिरेसी से बचना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ब्राह्मण को स्प्रेड करने का बुद्धिज्म, देन वो फिर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा और डाइवर्ट कर देगा। सो बुद्धिज्म का फिर कोई कुछ नहीं हो सकता है। द नेक्स्ट थीम ही एड्रेस टू द गैदरिंग, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वाज द क्वेश्चन ऑफ मनी, फंड। ये फंड कहाँ से आएगा? तो वो बहुत ही कैटेगरिकली कहते हैं कि भारत इसमें पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है। भारत में कुछ ही लोग हैं जो आपको पैसा दे सकते हैं। इसलिए जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उसको इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और वहाँ से जो डोनेशन आएगा उससे भारत में बहुत बुद्धिज्म का प्रचार होगा। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ अम्बेडकर लेक्चर वाज कि he gave a report about the spread of Buddhism in South India। कहते हैं कि यहाँ 30-40 साल से ही और हर शहर का उन्होंने
डेटा दिया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे बात है कि वो सीक्रेट बात कहते हैं कि अभी इसको पब्लिक नहीं करना है, वो था कि मैसूर के राजा से उन्होंने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, सेमिनरी खोलने के लिए 5 एकड़ लैंड उन्होंने गिफ्ट लिया था और मैसूर के राजा ने दिया था। नेक्स्ट ईयर 1955 में बॉम्बे में ही एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ही अनाउंस दैट कि बेंगलोर में वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश वेरी सून बुद्धिस्ट सेमिनरी। तो ये था वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसके बारे में हमने बात की। और इसके बाद जो चिट्ठी लिखते हैं, कई और इश्यूज हैं कि बार बार एवरी टाइम अंबेडकर एम्फसाइज्ड दैट द बुद्धिस्ट मॉन्क शुड गो एंड बुद्ध धर्म का प्रचार करें। इंस्टीट्यूशन के बारे में रेगुलरली ही वाज टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन। ही हिमसेल्फ एस्टैब्लिश्ड सेवरल इंस्टीट्यूशंस, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट, Indian Buddhist Society of India and all. And after accepting Buddhism, he wrote Wallace Singha a letter, important letter, कि क्या ultimately what is the planning, and he was critical about the present condition at that time of Buddhism, because आज भी वही हालत है कि आज जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो सिर्फ बार बार अंबेडकर एम्फसाइज करते हैं कि इसके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लेट्स फोकस ऑन दैट, लेकिन उसके थ्योरेटिकल सिद्धांत एंड थ्योरीज एंड ऑल दैट उसको बार बार वो कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन में डिस्कस होगा। लेकिन कोई भी रिलीजन, कोई भी वो स्प्रेड तब करता है जब उसके लिए ह्यूमन एजेंसीज काम करती हैं। तो आज भी मोर और लेस आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि क्या रियली वी आर वर्किंग ऑन द आइडियाज़ ऑफ अंबेडकर, कि उन्होंने जो पूरे एजेंडा, जो प्रोग्राम बनाए थे कि कैसे स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे और जापानीज प्रिस्ट की तरह शादीशुदा मॉन्क्स बनाएंगे, उसको सैलरी देंगे। तो आज बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं भारत में और बहुत सारे रिसोर्सेज भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पैसे उसकी कमी नहीं है, लेकिन आफ्टर अंबेडकर परिनिर्वाण ऑलमोस्ट मोर देन 70 ईयर्स वी हैव, और मुझे पता करना चाहिए कि बुद्धिस्ट जो पूरे सिस्टम है भारत में कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटीज खोले हैं। बिकॉज एवरी सपोज अभी भारत में जो आरएसएस है या हिंदू महासभा है, दे आर वर्किंग ऑन दी इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, सरस्वती शिशु विहार है, हजारों उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। क्या ये असेसमेंट का ये टाइम नहीं है? अभी हमने सोशल मीडिया में देखा कि इलाहाबाद में जहां राम मंदिर बन रहा है वहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट जो रिमेन्स मिले हैं कि वो साकेत बुद्ध नगरी है। तो साकेत बुद्ध नगरी है तो बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म सिर्फ मठ में बैठने से और त्रिपिटक उच्चारण करने से, मंत्र पढ़ने से बुद्धिज्म का स्प्रेड नहीं होगा। बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट अ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पैटर्नेज एंशिएंट टाइम में बुद्धिज्म स्प्रेड इसलिए हुआ कि वहाँ पॉलिटिकल पैटर्नेज भी था, मॉन्क्स सब लोग जाते थे और उसको स्प्रेड भी करते थे। आज हमें ये देखना है कि क्या कोई पैटर्नेज मिल रहा है। नहीं पैटर्नेज मिल रहा है तो इसके लिए मूवमेंट कौन करेगा? इंटरनेशनल फोरा है, देयर आर डिफरेंट फोरास, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वी हैव टू रीड अंबेडकर इन प्रेजेंट सिनारियो। और अंबेडकर बुद्धिज्म इज वेरी मच इंटरलिंक्ड विद द सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। जस्टिस कैसे मिलेगा? इक्वलिटी कैसे आएगा? फ्रेटर्निटी कैसे एस्टैब्लिश? फ्रीडम कैसे मिलेगा? सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर पॉलिटिकल क्वेश्चंस। एंड अंबेडकर सेड कि मैंने ये जो लाइफ के 3 प्रिंसिपल जो मैंने अडॉप्ट किए हैं, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट इज कमिंग फ्रॉम बुद्धिज्म। तो ये फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड ऑल, ये घर में बैठने से और मठ में बैठने से ये खाली होगी नहीं। मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए एफर्ट्स
लगाने पड़ेंगे, ह्यूमन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके लिए टेंशन भी होगा, झगड़े भी होंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए टेंशन भी होगा, झगड़े भी होंगे, स्ट्रगल भी होंगे, मूवमेंट भी होंगे, आंदोलन भी होंगे, ये सब करने होंगे। और जब तक ये नहीं करेंगे, आई थिंक बुद्धिज्म एक थ्योरेटिकल, एक क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल एक कॉस्मेटिक फॉर्म की तरह बन के रहेगा। और धीरे धीरे आधा आधा बुद्धिज्म और आधा हिंदुइज्म जो आजकल चल रहा है भारत में, कि जय भीम नमो बुद्धाय भी है, और इधर लक्ष्मी भी हैं, और सिद्धि विनायक भी हैं, और तमाम है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वी हैव टू रीड अम्बेडकर। और उस इंस्टीट्यूशन पे अभी तो चूंकि टाइम कम था, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जो जितनी मैंने बात कही है, सारी बातें सब डिटेल्स में कही हुई, विद पेज नंबर, फुट नोट, रेफरेंस। तो थैंक यू सो मच। और अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आधा घंटा हमने बोला है, जितना टाइम दिया गया था उसमें समराइज करना था, हाफ एन आवर। शुक्रिया, थैंक यू। एंड जी, आई थिंक जी जी, क्वेश्चन आंसर में ज्यादा बात करेंगे ना। अच्छा, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, धम्म लिपि। जी 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 जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी 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 जी, हाँ हाँ, जी। हम्म दे- हम्म, पर्सनल, दिस इज पर्सनल क्वेश्चन। किताब। हम्म, देखिए, आ- आजादी अंबेडकर के पास कुछ भी नहीं था। व्हेन ही वाज इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको पता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब, हेलो, कैन यू लिसन मी? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे पार्ट पे। कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई, राजा महाराजा सबके खिलाफ बोल रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट सबके खिलाफ बोल रहे थे, और उन्होंने राजाओं से बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए अपील की कि भाई हमें इंस्टीट्यूशन चलाने हैं, तो मुझे चंदा दीजिए। तो उन्होंने वहां 1335 पाउंड 1930 1930 में जितने राजा महाराजा थे, दरभंगा महाराज और तमाम ऐसे लोग, उन सब लोगों से उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए, स्कूल चलाने के लिए, हॉस्टल खोलने के लिए, लाइब्रेरी खोलने के लिए। ठीक है। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेशनल रिसर्चर और प्रोफेशनल एक्टिविस्ट ऑल्सो। हमारा काम पढ़ना है, और लोगों को, अंबेडकर जो लड़ाई लड़ रहे थे वो कोई तोप से और कोई गन से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये अगर प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं तो बुद्धि की लड़ाई होगी, बुद्धि। तो जब तक आप बुद्धि नहीं आएगा, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। एंड आई एम सॉरी टू से कि आफ्टर मोर देन 7 डिकेड्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, अंबेडकर ने जितने सारे इंस्टीट्यूशन बनाए, जितने सारे बनाए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और जितने
महाबोधि सोसाइटी और तमाम बनाए, उसको हम लोग रिटेन नहीं कर पाए। और मैं पढ़ता हूं, मुझे इतना अच्छा लगता है, हमने एक हिस्टोरियन, प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं प्रोड्यूस किया, हमने ढंग के कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं प्रोड्यूस किए, हमने इकोनॉमिस्ट नहीं प्रोड्यूस किए, ये तमाम हमने नहीं प्रोड्यूस, इंटेलेक्चुअल्स नहीं बनाए, हमने ब्यूरोक्रेट्स बनाए, एमएलए बनाए, एमपी बनाए, सीएम बनाए, हमने कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं तैयार किया जो फॉरेन पॉलिसी में बात कर सके। तो ये लड़ाई मल्टी डायमेंशनल लड़ाई है, और यू हैव अ नंबर, आप कहने के लिए बहुजन कहते रहिए, लेकिन जब तक ये बुद्धि की लड़ाई है, जब तक रतन लाल और कांचा इलैया भी हैं, और हम लोग जैसे, हम लोग तो पढ़ते लिखते हैं, बोलते हैं, हमारे जैसे हजारों लोगों की जरूरत है जो रोज अंबेडकर पढ़े, लोहिया पढ़े, और तमाम फुले को पढ़े और आवाज दे। मैं बोध गया था, बोध गया, आई एम फ्रॉम बिहार ऑल्सो, मुजफ्फरपुर, बोध गया था। मेरे कई मॉन्क्स, मेरे फ्रेंड हैं, वो आए मिलने मुझसे, और मैंने कहा कि मुझे आप 50 आदमी मॉन्क दीजिए और मैं 100 आदमी देता हूं, और चलते हैं बोध गया में बुद्धिज्म का प्रचार करने। 50 मॉन्क वहां बुद्धिज्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? आपके पास न स्कूल है, न कॉलेज है, न लोग बाहर निकल रहे हैं। जो भी मिडिल क्लास हम जैसे लोग हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं और बुद्धिज्म पे बात करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जो प्रीचर, उपासक की बात जो कह रहे थे अंबेडकर, क्या अंबेडकर को पढ़ा जा रहा है इस दृष्टिकोण से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं पढ़ा जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, और पुष्पमित्र शुंग के बाद ये दूसरी बार इतना भयानक राज है। अभी भारत में मैं रहता हूं, मुझे पता है क्या यहाँ स्थिति है, लेकिन परिवर्तन, चेंजेस आर नॉट नेचुरल, परिवर्तन होता नहीं है, बदलाव लाया जाता है, और बदलाव अपने आप नहीं होगा, उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। आप देखिए 2 महीना में 21 तारीख को, बिकॉज मुझे क्लास भी लेना होता है, देश भर में जाके भाषण देना होता है, सोशल मीडिया पे लिखना होता है, मैं ट्विटर तमाम इस पे, जब खाली टाइम था मैंने क्या किया, खाली टाइम में 2 महीने में मैंने 112 से ज्यादा वीडियोस बनाए, और करीब 2.5 लाख लोग देख चुके हैं 2 महीने में, क्योंकि उसमें मैं पढ़ता हूं और पढ़ के पेज नंबर के साथ बोलता हूं। हमारे यहाँ किस तरह के अंबेडकरवादी लोग हैं? 3-4 तरह के अंबेडकरवादी लोग हैं। एक है इंटरनेट पैक के अंबेडकरवादी, कि जो अपना पैक भरवाते हैं, दिन भर सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं कि ये नकली है, ये असली है, तमाम है। अंबेडकर को सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका में पढ़ा जा रहा है, लेकिन जिस लैंग्वेज में वो पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज जनता के बीच नहीं पहुंच रही है। और जो लोग वाकई अंबेडकर और बुद्धिज्म का झंडा उठा के चलना चाह रहे हैं, उनको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, कि जो इसको बदलाव ला सकते हैं, जो चेंजेस ला सकते हैं, उनको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं, बिकॉज आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी में रह जाता है। डॉक्टर अंबेडकर मराठी में उन्होंने अखबारें निकाली, मूक नायक हो, जनता हो, बहिष्कृत भारत हो, तमाम उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोले, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस। हमारे पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, मीडिया हाउसेस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, और हम लोग सिर्फ भारत में तो बहुत बुरा हाल है, सब एक दूसरे को मैं तो कहता हूं, मैं आई एम नॉट अम्बेडकर राइट, आई एम अ बिगड़ा चेला ऑफ अंबेडकर, आई एम अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन, आई नो हाउ टू रीड हिस्ट्री, हाउ टू इंटरप्रेट हिस्ट्री। तो जो यहाँ पे असली घूम रहे हैं, वो पता नहीं कोई एक हिस्टोरियन भी नहीं बना रहे हैं। तो बहुत सारी बातें जो है, जैसे अंबेडकर साहब के जमाने में तो बहुत सारी चीज नहीं थी। आज तो हम अपने मोबाइल फोन से आपसे बात कर रहा हूं, अमेरिका में बैठे इतने सारे साथी बात कर रहे हैं, उस जमाने में संभवता नहीं था। तो उनको पढ़ना, और किस लिए पढ़ना? मैंने तो अंबेडकरनामा इसलिए शुरू किया कि जितने आपके देश के धरोहर हैं, रेवोल्यूशनरीज हैं, उसको जो है कम से कम पढ़ के, जो हमारे लोग पढ़ नहीं सकते हैं वो कम से कम सुन सकते हैं, तो कम से कम उनको सुनाया जाए कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू विन द बैटल। सो यू हैव टू प्रोड्यूस लीडर्स फ्रॉम योर होम। ये नहीं कि मेरा बेटा मैनेजमेंट गुरु होगा और दूसरे का बेटा रिवोल्यूशन, नहीं, अपने घर से यू हैव टू सावित्रीबाई फुले बनाने पड़ेंगे, साहू जी महाराज भी बनाने पड़ेंगे, अंबेडकर बनाने पड़ेंगे, काशीराम बनाने पड़ेंगे, तब आप जाके आप ये पूरा आंदोलन अभी लड़ सकते हैं, अदरवाइज बहुत खराब स्थिति है।
यस। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता, मैं भूल गया था उस समय, एक्चुअली मेरे पेजेस कुछ लाइट में छूट गए थे। हेलो, कि नेपाल में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था और वो था 17 नवंबर 1956, मतलब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण से महज 20-22 दिन पहले। और जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे गए थे तो वहां पे वाईसी शंकरानंद शास्त्री ने एयरपोर्ट पे उनसे एक सवाल पूछा, बहुत ही पोलाइटली सवाल पूछा कि बाबा साहब, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, डिटोरिएट कर रहा है, क्या आपके लिए धम्म के प्रचार के लिए भारत भ्रमण पॉसिबल होगा, कितना पॉसिबल होगा, उन्होंने सवाल पूछा था। इस पे डॉक्टर अंबेडकर का रिप्लाई आप सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, बहुत गुस्से में होते हुए, थोड़ा क्रोधित गुस्से में आए और कहे, एकदम फोर्सफुली कहा उन्होंने कि बौद्ध धर्म के प्रचार जैसे काम के लिए मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं। मैं अपने शेष जीवन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइफ का हर क्षण भारत में बुद्ध धर्म के रिवाइवल और प्रोपगेशन के कार्य में लगाने के लिए तैयार हूं। मैं दिसंबर में बंबई में लाखों लोगों को शिक्षा देने जा रहा हूं, बौद्ध धर्म की दीक्षा देने जा रहा हूं। नागपुर में 14 अक्टूबर 56 को जिस तरह का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी तरह का कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें लाखों लोग फिर बौद्ध बनेंगे। तो ये सोचिए, जो उनका डेथ हुआ है उससे 20 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे कह रहे हैं कि मैं कोई बीमार नहीं हूं। आज कितने ऐसे अंबेडकराइट या बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने तो जितने संस्थाएं बनाई वो तो इंटरेस्टिंग है। उन्होंने जो बनाई थी भारत बौद्ध महासभा, उसके आप ये पढ़ लीजिए उनके क्या एजेंडा थे। उन्हें 10 इंपॉर्टेंट एजेंडा उन्होंने दिए थे कि इसको भारत में इसको प्रोपगेट करना और स्ट्रेंथन करना, बौद्ध टेम्पल स्टैब्लिश करना, जो रिलीजियस और जो साइंटिफिक डिसिप्लिन हैं उसके लिए स्कूल और कॉलेज बनाना, ऑर्फन्स के लिए हॉस्टल बनवाना, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स बनाना और जो राहत केंद्र होते हैं उसको बनाना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए फुल टाइम कार्यकर्ता बनाना, वर्कर्स बनाना, और धर्म गोष्ठियां, सेमिनार्स, रिलीजियस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना, सभी ऑल रिलीजन्स का पूरा जो कंपैरेटिव एनालिसिस है उसको प्रोपगेट करना। आज बताइए कितना कहां हो रहा है, ये सवाल पूछिए। जो लोग मठ चला रहे हैं, जो लोग पूरी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जो लोग दिन रात जय भीम नमो बुद्धाय कह रहे हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनको आप चंदा देते हैं, उनसे ये सारे सवाल पूछिए। आगे कहते हैं बौद्ध लिटरेचर को पब्लिश करना और जो कॉमन लोग हैं उनको ठीक तरीके से बौद्ध रिलीजन जो है समझ में आ जाए, इसके लिए बुकलेट्स बनाना और पोस्टर बनाने, भिक्षुओं का एक धर्म संघ अगर जरूरी हो तो बनाना। इसके साथ मठ में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वहां पे प्रिंटिंग प्रेस बनाना और जो आम लोगों के लिए, भारत में आम लोगों के लिए सभा, मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। ये तो बोले है सारी बात। अब सवाल ही हम पढ़ते क्यों हैं? सिर्फ बाबा साहब को पढ़ लें और जय भीम नमो बुद्धाय बोल दें तो उससे बात बनने वाली है? नहीं। सो यू हैव टू गो टू द पीपल, मासेस। और ये जितने संगठन जिन्होंने बनाए हुए हैं, जितने बड़े बड़े, उनसे ये सवाल उठाइए और सवाल उठाइए, बोलिए। चलिए, देखिए, मैं आई एम ए प्रोफेशनल टीचर, मेरे वर्ष में जितना उतना मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, लोगों को, हजारों लोगों को सुना रहा हूं। मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, संगठन नहीं है। और ओवेद ने जो कहा था उसमें कुछ पार्टी से मैं नहीं जुड़ा, जेडीयू से नहीं जुड़ा हुआ था मैं। हाँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ज्यादा सोशल मूवमेंट के साथ हूं। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जब उन्होंने चंदा के लिए पूरा अपील जारी किया था डोनेशन के लिए, तो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स मेरे लिए यदा कदा करने वाला एक शौक है, हॉबी है। मेरा जो मेन पर्पस है, जो मेन काम है, वो है सोशल मूवमेंट। वो मेरा एजेंडा है। देखिए, जब मिनिस्ट्री से रिजाइन करने के बाद क्या वो बैठे
नहीं, वो ज्यादा एक्टिव हुए। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी, 3 पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई। 36 में, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 42 में शेड्यूल कास्ट, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और 55 56 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ उन्होंने रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिशियन, जिनको नेता बनना है उनके लिए प्रोफेशनल कोर्स उन्होंने तैयार किया था और इंस्टीट्यूट बनाया था। आज ये बातें अपने नेता से पूछिए, जिस पॉलिटिकल नेता को आप वोट देते हैं, जिसको चंदा देते हैं, उससे पूछिए। जितने लोग यहाँ मठ और संगठन चलाते हैं उनसे पूछिए कि ये सब कहाँ है, एजेंडा कहाँ है। तो कैसे नहीं आप डिक्लाइन होगा? कैसे हिंदुइज्म का और ब्रह्मनिज्म का एक्सपेंशन और स्प्रेड नहीं हुआ? वो तो लगातार काम कर रहे हैं। बुद्धिज्म से सीख के वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है पढ़ना लिखना नहीं, खाली इलेक्शन और पॉलिटिक्स, नो, रिसर्च पे फोकस नहीं है। वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस स्मॉल अंबेडकर, वी नीड 1000 अंबेडकर्स राइट नाउ। हिस्टोरियन बाबा साहब तो अकेले सब कुछ थे, मल्टी डायमेंशनल। मैंने पहले कहा, हिस्टोरियन थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे, बैरिस्टर थे, लीडर थे, जर्नलिस्ट थे, सब कुछ थे, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एवरीथिंग। हम लोगों ने अपने बच्चों को हिस्टोरियन बनाया ही नहीं, हमने फिलोसोफर बनाया ही नहीं। तो ये जो क्राइसिस आया है, क्राइसिस अपने आप नहीं आया है, हमारे लोगों ने इसको इनवाइट भी किया है। ये बात आई थिंक मैंने आपके क्वेरीज को क्लियर किया होगा। हेलो, आपने जी जी हम्म आप इंटरनेट पर जाइए, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर टाइप कीजिए, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। और ओवेद वहां बैठा हुआ, उसको सब कुछ पता है। प्राइमरी सोर्स, या वी हैव टू रीड प्राइमरी सोर्स। Ambedkar writing and speeches of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. It is published in English in 17 volumes. Is it clear? Hello? रावल साहब, आप समझ गए? हेलो, जी हम्म So I have been associated. Praveen Saab is my friend, a close friend of mine. He invited me in Hyderabad to deliver a lecture. और बहुत सारे मेरे दिल्ली में हैं, हिंदू कॉलेज में बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं, सोएरो के, और दिल्ली में हैं। और आई हैव बीन एसोसिएटेड, वी हैव बीन डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स अबाउट अंबेडकर मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल दैट, एंड द स्टूडेंट्स आर क्वाइट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. So let's see. This is the vacation, Corona vacation. This is, so let them come. Then we will discuss with them. I think I have given Professor Saab. See,
ऐसा है, आप हमारे लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। आवर पीपल, मतलब इवन इन रूरल एरियाज पीपल आर नॉट, वी हैव अ स्मॉल मिडिल क्लास, बट आई थिंक सोशल मीडिया एज ब्रिज, जो है ब्रिज का काम किया है। सोशल मीडिया ने दुनिया को पूरी मुट्ठी में लाया है, बहुत क्लोज लाया है दुनिया को। तो आई थिंक जैसे आई हैव स्टार्टेड अम्बेडकर नामा एंड माई पर्पज वॉज कि most of the people they cannot read multi-volume writing of Ambedkar, multi-volume writings of Ambedkar. So I started Ambedkar Nama, and the purpose was especially in Hindi belt, so it is in Hindi कि वो पढ़ के लोगों को समझाना है, let them understand what is Ambedkarism. Ambedkarism is not only Jai Bhim and blue gamcha and blue color. Ambedkarism is much more beyond that. The Jai Bhim and blue color is a symbolic thing, which is important, but it is not the last thing. So we have to use, multimedia and different forums, platforms, and we have to create, large number of intellectuals, intellectuals and activists. So what I have seen is